All wisdom of life or wisdom of Shastras begin with the first question, first realization that life is a suffering, that suffering is a reality. Guru Nanak puts it in his own way, Nanak, Dukhya Sab Sansar. I'm trying to tell you that life is suffering. This is the first step. So anybody who starts experiencing it has stepped on the road of spirituality. But till you have not achieved the basic needs of life, this realization that life is a suffering will not dawn upon you. So basic needs are first required. Basic needs means roti, kapda, makan. That is required because you would think that you're suffering because you don't have roti, you don't have kapda, you don't have makan. But people who have everything, name and fame including, they would realize that in spite of everything, life is a suffering. But till you have all this, you would think that perhaps if you have a name, if you have fame, if you have all this, then you would be happy. But once you have everything and now realize that. So people who want to walk the path should first have enough of aparavidya. Aparavidya means all that you can do in this life. Try to achieve it, whatever you think you want to achieve. Try to achieve it as quickly as possible so that finally you realize, yesterday I was in a gathering and a very beloved daughter of mine was sitting with me. She is privileged to have been seated on appointed as a justice, as a judge at a very early age. So that's the stage when you realize life is a suffering. Because you name, fame, honors, everything you got very early age. And roti, kapda, makan needs have been fulfilled. It's called Maslow's pyramid. It's been fulfilled. And now you realize कि बात नहीं बन रही है. Life is a suffering. So you begin. What is the cause of suffering? Why life has been made like this? So human starts becoming human. It's no more an animal seeking food and shelter. Animals seek food and shelter, and that's the end of their life. Human food and shelter has already been guaranteed. Now, why am I suffering? So this why makes you human. Now you actually started doing a PhD. Otherwise, you keep getting degrees, multiple PhDs, they'll be useless. Because what is PhD? Doctorate of philosophy. Philosophy means why life is like this. Is there any way it can be made fulfilled, happy, peaceful? And that's when the Guru steps in. Guru is what? Not a person. Guru is a reminder. Is a reminder. A person like me has my Guru's pictures filled every corner of the house. He is not in the pictures. Pictures are non-living. If pictures are non-living, I am also non-living, the one who is speaking to you. It's all non-living. It's all jad. Pictures are as much jad as I am. But there's a hidden message inside it. Inside every picture, inside reminder. There's a reminder in every picture which tells you what is Chetna, what is happiness,
व्हाट इज आनंदा, व्हाट इज शांति। सुजिनी पछाता हुक्म तिन कदे ना रोवना। हुक्म है ये कि अपने आप को पहचान लो कि तुम कौन हो। तुम ये आकार नहीं हो। जब तक तुम आकार हो तब तक तुम्हारी बात नहीं बन सकती। ये गाना आज सुबह सुबह मन में आ रहा था। यू नो एवरी थिंग विच अ पोएट सेज, पोएट इज अ poet in English is in Hindi is a kavi. Kavi means a sant. कवि का मतलब होता है संत, जिसने पीएचडी कर ली है, लाइफ की पीएचडी। गाना से इट सेज ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओ रे, ओ रे, begins like beautifully. The music director puts it like, ओह रे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओह रे ताल। Now what does it mean? Tal is a pond, becomes a river, and river becomes the ocean. That is being seen by the sthul, by the gross eyes. हो क्या रहा है? ताल नदी में नहीं मिल रहा, जल ही जल में मिल रहा है। और नदी मिले सागर में, वहां पे भी नदी सागर से नहीं मिल रही, पानी ही पानी में मिल रहा है। और सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। सागर जब हो जाती है ना, एक ताल सागर हो जाता है, वो तो स्थूल आइज को दिखता है कि एक ताल सागर बन गया है। मगर हुआ क्या है, जल जल से मिल चुका है, अभी किसको मिलना है आगे। सो हम भी निरंकार हैं, निरंकार से मिलना है। जब तक आकार बने रहेंगे तब तक हम मिजरेबल रहेंगे, मिजरेबल रहेंगे। अगर सत्य साई बाबा एक आकार है तो वो भी उतने ही मिजरेबल हैं जितने आप हैं। मगर वो है नहीं ना आकार, वो निरंकार है। ऐसे ही कृष्णा है, ऐसे ही गुरु नानक है, ऐसे ही अल्लाह है। कोई अंतर नहीं है। सुताल में और सागर में और नदी में अंतर तो कोई है नहीं, ये तो स्थूल आंखों को दिख रहा है। ओह रे, ओ इग्नोरेंट वन, यू थिंक ताल मिले नदी में और नदी मिले सागर में। अरे ऐसा कभी नहीं होता। जल मिले जल से, तुम्हारे अंदर एक निरंकार तत्व है, उसको पहचानो तो बस आनंद ही आनंद है। फिर तो तुम अभी के अभी फुलफिल्ड हो गए। पर जब तक इस हट को पकड़े रखोगे कि मैं आकार हूं, तब तुम काले भी हो, गोरे भी हो, मोटे भी हो, पतले भी हो, बूढ़े भी हो, बच्चे भी हो, ताल भी हो, सागर भी हो, पर तुम जल हो, जल से मिले रहो। हरे कृष्णा। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। आगे क्या बोलते हैं, पानी में सीप जैसे, प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना। Now, what does it mean? What is the Guru Nanak saying here? What is Krishna saying here? What is Satya Sai Baba saying here? सूरज को धरती तर से, देखो धरती
passionately, optimistically, in all faith, in all happiness, keeps circumambulating the Suraj. In संयम, संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल, वो जानती है कि सूरज मेरा है, मैं उसके अराउंड ही घूमती रहूं सदियों तक, मगर मिल नहीं जाऊं मटीरियली उससे। मटीरियली मिल जाएगी तो प्रलय आ जाएगी, अनाहिलेशन हो जाएगी। अगर इतना प्यार है कि कभी उसको छोड़ती ही नहीं अपने ऑर्बिट को, तो मिल क्यों नहीं जाती उससे? देयर इज अ सेल्फ कंट्रोल। जब तक ये दूरी बनी रहेगी, इतनी सी दूरी, इतनी सी दूर, दूर भी नहीं जाना, पास भी नहीं आना, उतनी घूमते रहना उसके, वो ही गुरुमुख है। सर्कम एम्ब्यूलेटिंग द गुरु होल लाइफ। मिल नहीं सकता बॉडीली, बॉडीली मिलेंगे तो अनाइहिलेशन हो जाएगी, और दूर भी नहीं जा सकता। गुरमुख होवे तो एक को जाने, हम में दुख न संतापे। हम में का दुख नहीं है कि मैं एक आकार हूं, और धरती को चंद्रमा, चंद्रमा भी ऐसे ही घूमता रहता है धरती के रंग। और देखिए मिस्ट्री के पानी में सीप प्यासी, पानी में बैठी है सीप, दैट ऑयस्टर पानी के अंदर ही रहता है, बट कीप्स वेटिंग फॉर अ बूंद फ्रॉम द बादल, कि कब वो बूंद पड़े और मैं फुलफिल हो जाऊं। बूंद छिपी किस बादल में, कोई जाने ना। कौन सा बादल है जहां से एक बूंद मेरे अंदर आ जाएगी और मैं फुलफिल्ड हो जाऊंगा? वो बादल को गुरु बोलते। उसके मुख से जो शब्द आपके हृदय में उतर जाएगा, तो आप पूर्ण हो जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे। तब तक आप कहना बंद करिए कि मेरा गुरु है, मैं सिख हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मेरा तो ये गुरु है जी। कौन गुरु है? कुछ नहीं है, अभी तो बूंद नहीं पड़ी ना अंदर। अंदर बूंद आ जाएगी तो उसके बाद पता चलेगा गुरु होता क्या है। नहीं तो भीड़े हैं, भीड़ लगाए रखेंगे हम सत्य साईं बाबा के मंदिर में जाके, पुट्टपर्थी में जाके सेटल हो जाएंगे। कोई अमृतसर ढूंढता फिरेगा तो कोई मक्का ढूंढता फिरेगा। बूंद वो पड़ जाए अंदर एक बार, तो उसके बाद वो सीप प्यासी ना रह जाएगी। सो द मिस्ट्री इज के सीप ऑलरेडी बैठी तो पानी के अंदर ही है, मगर इट्स वेटिंग फॉर द गुरु। जिस दिन गुरु की बूंद अंदर पड़ गई तो आप खिल जाएंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अनजाने होठों पे क्यों पहचाने गीत हैं, अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत हैं। कोई अनजाने होंठ आपसे एक ऐसी बात करेंगे जो आपको लगेगा ये तो मैं सदियों से इसी बात को तो मैं भी सोचता था, सोचती थी। बस आप पूर्ण हो जाएंगे। जो आपको लग रहा था कि हम तो अनजाने हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानते, वो तो जन्मों के मीत हैं। पता चल जाएगा ये तो सदियों से ही और शी वॉज माइन ओनली। क्योंकि वो आप ही के दिल की बात कहेंगे, वो कोई पराई बात नहीं कहेंगे। वो स्मॉल टॉक नहीं करेंगे वो होंठ। स्मॉल टॉक होती है, ये कहाँ के क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, स्विट्जरलैंड में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, स्मॉल टॉक है। इससे क्या लेना देना आपको? हरे कृष्णा, हरे राम। आपकी बात बननी चाहिए, दैट्स द बिग टॉक। स्मॉल टॉक्स में कैसी जिंदगी निकलेगी? लाइवलीहुड तो चाहिए ही। लाइवलीहुड इज स्मॉल टॉक, बट व्हाई एम आई लिविंग, दैट्स द बिग टॉक। स्मॉल टॉक कोई नहीं। मेरा बेटा छोटा याद आ जाता है। वो एक बार मैंने उससे ऐसे पूछ लिया क्या हो रहा है स्कूल में,
मैं जनरली प्यार करता हूँ, मैं बातें बातें ज़्यादा नहीं करता। सो एनीवे मैंने डाइनिंग टेबल पे उससे पूछ लिया, तो मेरे को पॉइंटेडली बोला, पापा स्मॉल टॉक डजंट सूट यू। आई सेड व्हाट प्रोफाउंड, यू नो, मतलब कि आप तो ऐसी ऐसी बातें नहीं करते फजूल की। मस्त हो जाइए, दैट्स द नीड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। Question, why am I suffering? Not because of my husband, because of my wife, not because of my children or my profession. You're suffering because you yet don't know, who am I? Who am I means who are you, not me. Who am I? The day you realize who are you, फिर जल जल से मिल जाएगा। फिर कोई ताल ना रहेगा, कोई नदी ना रहेगी, कोई सागर ना रहेगा, कोई मोटा पतला ना रहेगा। आप मोटे पतले में फंसे हुए हैं, ब्लड प्रेशर में फंसे हुए हैं कि ज्यादा हो गया कि कम हो गया। That's called a hypochondriac. It's a medical disease. Hypochondriac. सारा दिन यही सोचते रहते हैं, शरीर को लंबा कैसे किया जाए, छोटा कैसे किया जाए, मोटा कैसे किया जाए, पतला कैसे किया जाए, गोरा कैसे किया जाए, काला कैसे किया जाए। अरे खिल जाएंगे आप। थोड़ी सी अच्छी आदतें are like, I always say, they're like deodorants. But नाम से जुड़ जाएंगे, that's a perfume. You know, there's a difference between a deodorant and a perfume. I didn't know for very long. I must have come to know at the age of 40, 45, what's a deodorant and what's a perfume. But people who live in the West, I think they better know what is a deodorant, what's a perfume. Deodorant is to take away the body odors. So अच्छी आदतें डाल लेंगे, स्माइल करते रहा करेंगे, that's a deodorant. But if you want to be a perfume, फिर नाम से जुड़ जाइए, फिर अपने निरंकार स्वरूप को जान लीजिए. Then you will be fragrant. You will not require actually a deodorant. You will be a fragrant man roaming around everywhere. You will be a chalta phirta mandir. You know, Speaking Tree is a column in one of the newspapers. One of my wife's friend asked her, do you read Speaking Tree? It's very profound sometimes. She said, मेरे घर में चलता फिरता स्पीकिंग ट्री है, मैं कौन सा स्पीकिंग ट्री पढ़ूं? हरे राम, आप चलते फिरते प्रशांति निलयम हो जाएंगे, चलते फिरते अमृतसर हो जाएंगे। अमृतसर जाना नहीं पड़ेगा। कोई ज्ञानी, तत्ववेत्तु बोलते हैं, तत्ववित्तु, महाबाहो, जहातीह उभे सुकृत दुष्कृतम। श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो जान लेता है ना सत्य को, वो अच्छे काम, बुरे काम, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, ये सबसे परा हो जाता है। उसको एक रिलीजन्स में कुछ नहीं लेना देना। दिस इज पॉलिटिक्स। यू आर नॉट मेड टू बी ट्रैप्ड इन ऑल दिस कंफ्यूजन। बाकी कंफ्यूजन क्या कम है दुनिया में कि जब अब रिलीजन को भी एक कंफ्यूजन बना लो। By birth, my wife happens to be a Christian, and I, by birth, happen to be a Hindu. But people ask me, आप लोगों का कोई तकरार नहीं होता? What the hell is this? कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन क्रिश्चियन? सभी लोग दिल से जानते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है, मगर फिर भी फंसे हुए हैं। किसी ने मेरे को साई राम बोला, दूसरे आदमी ने बोला मुझे हरे कृष्णा। तो बोला कि आप इनको हरे कृष्णा क्यों बोल रहे हो, तो साईं बाबा के भक्त हैं। हरे कृष्णा, ये कौन साईं बाबा और कौन कृष्णा और कौन नानक? ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। पानी हो तुम,
पानी ही बन के रहो, आकार नहीं हो तुम। जिनी पछाता हुक्म तिनका देना रोवण, नाव नानक बख्शीश मन मा परोवण। तुम नाम हो, नाम जपते जपते अपना नाम पहचान लो। कोई भी नाम जपो, अल्लाह अकबर कहते रहो, तो जान लो कि अल्लाह ही सब कुछ है। मैं अल्लाह ही हूं, मैं आदमी नहीं हूं, ये जान लो। हरे कृष्णा जपते जपते कृष्ण स्वरूप हो जाओ। साईं राम जपते जपते सत्य साईं बाबा हो जाओ। जब तक नहीं हो जाओगे तब तक मिजरेबल रहना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है। दिस इज द लॉ ऑफ क्रिएशन। जब तक तुम अपने आप को ताल समझोगे तो आपको नदी बनना ही पड़ेगा, और जब नदी समझोगे तो फिर सागर में मिलना ही पड़ेगा। ताल क्या होता है? तमोगुण। ताल मीन्स पॉन्ड, स्टैग्नेंट वाटर। तमोगुण वो मूवमेंट चाहता है। प्लांट एक मूवमेंट चाहता है, एनिमल बनना चाहता है। रजोगुण, रजोगुण मीन्स मूवमेंट, अचीवमेंट, अटेनमेंट। जब अटेनमेंट्स बहुत हो गई, मैस्लो पिरामिड ऊपर नैरो होना शुरू हो गया, तो वो चाहता है कि मैं विस्तार में बढ़ जाऊं, बड़ा हो जाऊं, बड़ा हो जाऊं, बड़ा हो जाऊं, बड़ा हो, नेम फेम नहीं, अंदर से बड़ा हो जाऊं। तो उसको सत्व गुण बोलते हैं। अब गंगा सागर के पास चले गई है, उसको सत्व गुण बोलते हैं। मगर है तो अभी भी गंगा ही ना, अभी भी उसको सागर बनना है। तो जब सागर ही हो गई, अभी सागर मिले कौन से जल में? अब तो जल हो गई, अब तो सागर, अब तो ना नदी रह गई। अब सत्व को अपने सत्य के का अनुभव हो गया, बोध हो गया, वो बुद्ध हो गया। ना वो कोई गुण रह गया, वो गुणातीत हो गया। त्रय गुण्य विषया वेदा, निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन। ओ प्योर वन, ओ माई पाक, माई पाकीज़ा, माई खालसा, तुम आदमी नहीं हो। निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, तुम गुणों से परे हो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो अपने सत्य को पहचान लो। वही स्पिरिचुअलिटी है, वही अध्यात्म है, वही रिलीजन है, वही जिंदगी है। मैं उतना ही मिजरेबल हूं जितनी सारी दुनिया है, अगर मैं आदमी हूं तो। गुणातीत होके जियो, ये हुक्म है। जिनी पछाता हुक्म तिनका देना रोवण, नाव नानक बख्शीश मानमा परोवण। गुरु कृपा ते हुक्म पछाणे, जुगह जुगंतर की बिद जाने। गुरु के बिना कैसे याद आएगा कि मैं कौन हूं? अनजाने होठों पर ये, पर क्यों पहचाने गीत है। जो कुछ मैं अनजाने होंठ बोल रहे हैं, ये पहचाने गीत हैं। आपका भी दिल यही चाहता है कि यही मैं हो जाऊं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो आप नहीं बनना चाहते, आप भी ऐसा ही हो जाना चाहते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जपो 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 हरि नाम, एन आखा जीवा विसरे मर जावा। आखा जीवा विसरे मर जावा। अगर तो मैं नाम जप रहा हूं तो मैं जिंदा हूं, नहीं तो मैं भी उतना ही मिजरेबल हूं जितनी पूरी दुनिया है। ये गुरु नानक बोल रहे हैं, ये सत्य साई बाबा बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। गुरु नानक बोल रहे हैं कि अगर तो मैं नाम से जुड़ा हुआ हूं तब तो मैं गुरु नानक हूं, नहीं तो मैं उतना ही मिजरेबल हूं जितनी पूरी दुनिया है। ये जीसस बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। जीसस कह रहे हैं, यू शैल सी द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल लिबरेट यू। तुम सच को किसी दिन पहचान लोगे, मान लोगे,
तो मरने की बात कही ना जाए। जिस दिन मान जाओगे वही बात बन जाएगी। हरे कृष्णा, 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 हरे कृष्णा,